Hi friends, good morning everyone. How are you? In today's video, I'm going to explain you about the applications of demand and supply. These concepts are very interesting and is based on the concepts of movement and change in demand and change in supply. So let's start the video, and before starting the video, there's a small information for you. Unacademy is coming with the bumper sale. Yes, the bumper sale offer. If you are preparing for CA Foundation examination, and then it will be a very good information for you. So अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, then you are going to get 2 months additional subscription. And if you are going to buy 24 months subscription, it is you are going to get 3 months subscription. So I suggest, if you are pursuing CA examinations, then you must go for the combo one, the foundation and the inter. And you must purchase for that the 24 month subscription so that you can prepare your foundation as well as the CA inter examination both group. So I must suggest that you must buy this subscription before the offer lapses. Okay, Chali, let's start with the new concepts. Now, look at this. Here we have the demand curves and supply curve with us. And when we when there is a change in factors other than price, the demand curve shifts either rightward or leftward. Similarly, in the case of supply, when the factors other than price changes, the supply curve shifts either rightward or leftward. You very well know this concept. Now the questions are based on these concepts only. So let's start with the very first question we have with us is question number 133. Assumes that assumes X is a normal good, holding everything else constant. Assume that income rises and the price of factor of production also rises. What point in figure 1 is most likely to be the new equilibrium price and quantity? Okay, so we have the question with us. Now we have to start from this point. We have to start from this point 1. So we have this starting point and we have to find out the new equilibrium point after the above transaction. So X is a normal good. Okay, X is a normal good. So I'm going to X is a normal good. So if the income normal good, I'm writing here normal good. And you very well know that the normal good shows a positive income effect and the inferior good shows negative income effect. So if the income of the consumer increases, suppose Y is the income and the income increases, the demand for normal goods will increase. Exactly, the demand will increase. Yes, and there's another information for the supply also. See, here we have the information. Here we have the information also. The price of factor of production is also rising. If the price of input increases, the cost of production will increase. And this is going to reduce the profit margin and therefore the supplier will reduce the supply. So we have to decrease the supply and has to increase the demand. So here we have, first of all, increase in income. Increase in income resulted in increase in demand as the commodity X is a normal good. Another thing, price of inputs had increased
Therefore, the cost of production has increased. Therefore, the profit margin had decreased. Therefore, the supplier is going to reduce the supply. So we have to reduce the supply and we have to increase the demand. If we increase the demand, we are going to move to the rightward. And we are going to decrease the supply, then we are going to shift to the leftward. This we very well know. Now, moving to the diagram. This is the equilibrium point. We have to increase the demand. So in order to increase the demand, we are going to move to the rightward. So we move to 1 to 5. This is the rightward shift. Now we have to decrease the supply. From 5, we have to move shift leftward. So this is the leftward shift from 5 to 2. So we reach the final destination. So our answer will be 2. Our answer will be 2. So here we have 4 options and we are going to take option D. Option D is the correct answer. Got it? Simple. Again repeating, demand has increased. So we move from 1 to 5 and then supply has decreased from 5 to leftward to the 2. So 2 is the final point and 2 is the equilibrium point. Now moving ahead to question number 134. We are analyzing for market for goods Z. So यहाँ पर बात हो रही है Z कमोडिटी की. तो ये जो डिमांड सप्लाई है हम अज्यूम करेंगे कि वो Z कमोडिटी का है. The price of complementary good Y declines. Y का दाम जो है गिर गया है. Price of Y गिर गया है. आपको पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है. जब Y का दाम गिरेगा तो Y की डिमांड बढ़ेगी. अब ज्यादा Y इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा Z भी चाहिएगा, इसीलिए Z की डिमांड बढ़ जाएगी. तो Z की डिमांड बढ़ेगी तो हमको राइटवर्ड शिफ्ट करना है. दूसरी बात, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है. अब टेक्नोलॉजी के बढ़ते ही सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई भी Z की बढ़ा देगा. तो जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी. द सप्लाई विल इंक्रीज एज वेल एज द डिमांड विल इंक्रीज. सो जब डिमांड बढ़ी थी तो हम 5 पे गए थे, लेकिन अब आप 5 से लेफ्ट नहीं जाएंगे, आपको सप्लाई बढ़ानी है तो यू विल मूव टू द राइट. तो देखते हैं हमारे पास ये डायग्राम है. हम यहाँ पर हैं 1 पर, 1 से हम जाएंगे 5 पर और फिर हम 5 से जाएंगे 7 पर. तो हमारा आंसर हो गया 7. सो क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर है सी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. इसका आंसर था ऑप्शन डी, इसका आंसर है ऑप्शन सी. ठीक, चलिए अब हम आगे चलते. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. हेवी रेन इन महाराष्ट्र कॉज हवॉक टू द राइस क्रॉप. यानी कि ज्यादा बारिश होने की वजह से महाराष्ट्र में चावल की फसल खराब हो गई. तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? देखिए, अगर चावल की फसल खराब हो गई है तो इसका सप्लाई पर असर पड़ेगा, डिमांड पर तो असर पड़ेगा नहीं. डिमांड इज गोइंग टू रिमेन द सेम. चाहे बारिश हो चाहे ना हो, चाहे फेमाइन आए चाहे कोई ड्रॉट आए, जो वट एवर में भी द सिचुएशन, डिमांड तो एज इट इज रहने वाली है. यस, खाना तो हम उतना ही खाएंगे. वो अलग बात है कि अवेलेबल नहीं होगा तो जो दाम बढ़ जाएगा यही होगा. तो demand is going to remain the same. This factor is going to affect the supply only. This factor is going to affect the supply only. So हमने सिर्फ सप्लाई को क्या करना है, सप्लाई कम हुई है ना तो सप्लाई को हमको लेफ्टवर्ड लेके जाना है. देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए. हमारे पास पॉइंट 1 था तो हम सप्लाई को अगर पीछे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3. 3 इज द आंसर. तो 3 आंसर है हमारा. आंसर बी, 3 is the answer. Okay, now we have the another point. Assume that consumer expect the price of new car to significantly increase next year. कंज्यूमर को लगता है कि गाड़ियों के दाम जो हैं वो बढ़ने वाले हैं. तो ये फैक्टर कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन है. अगर कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन है तो डिमांड बढ़ेगी. अच्छा ये बताओ, अगर सप्लायर का एक्सपेक्टेशन है कि सब प्राइस बढ़ने वाले हैं तो वो क्या करेगा, वो सप्लाई कम करेगा, वो इंतजार करेगा, वो स्टॉक क्रिएट करेगा. जब
सप्लाई बढ़ेगी, मैं तो तभी सप्लाई करूंगा, मैं भी क्यों सप्लाई करूं। तो अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है कि दाम बढ़ने वाला है, तो वो डिमांड को बढ़ ज्यादा करेगा, बिकॉज उसको लगता है दाम बढ़ने वाला है, इससे पहले दाम बढ़े अभी खरीद लो, तो वो डिमांड करेगा ज्यादा, सो द डिमांड का विल शिफ्ट राइटवर्ड। लेकिन अगर यहाँ पर कंज्यूमर की जगह पर एक्सपेक्टेशन दिया होता सप्लायर का, तो फिर ऐसी सिचुएशन में सप्लाई जो है कम हो जाती। लेकिन यहाँ पर सप्लाई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, कंज्यूमर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो वी हैव टू जस्ट इंक्रीज द डिमांड। और जब डिमांड बढ़ेगा तो आपको पता है 5 पर आएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। आंसर हो जाएगा हमारा 5। 5 इज द आंसर। 5 इज द आंसर। ठीक, सिंपल। अच्छा, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 को समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आपको आते होंगे कॉन्सेप्ट, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, अगर डिमांड बढ़ जाए किसी भी चीज की तो क्या होगा, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाए, मान लीजिए पोटैटो की डिमांड बढ़ जाए, प्याज की, अनियंस की डिमांड बढ़ जाए, मोबाइल फोन्स की डिमांड बढ़ जाए, तो किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस उसका बढ़ जाता है। सिंपल है ना। और अगर सप्लाई बढ़ जाए तो, मान लीजिए प्याज की अबंडेंट सप्लाई आ जाए, चावल की, गेहूं की अबंडेंट सप्लाई आ जाए, तो क्या होगा, चावल का दाम गिर जाएगा, गेहूं का दाम गिर जाएगा। तो अगर डिमांड बढ़ता है तो सब प्राइस बढ़ जाता है, और अगर सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस गिर जाता है। तो अगर दोनों बढ़े तो, दोनों बढ़े तो क्या होगा, चलिए मैं आपको यहाँ पर ये जो है एक डायग्राम की मदद से बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। ये मेरे पास डिमांड कर्व है, ये मेरे पास सप्लाई कर्व है। Both are intersecting each other at this point, and this is the price and this is the equilibrium quantity demanded and supplied. ठीक है, तो हुआ क्या, आपने डिमांड बढ़ा दिया और आपने सप्लाई भी बढ़ा दिया, दोनों बढ़ा दिया, डिमांड भी बढ़ा दिया और सप्लाई भी बढ़ा दिया। तो देखिए, डिमांड बढ़ाया, सप्लाई बढ़ाया, लेकिन सप्लाई बढ़ाया जा रहा, लेकिन सप्लाई बढ़ाया जा रहा। तो जब सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइस का क्या होगा, प्राइस गिर जाएगा, ऐसा नहीं। तो क्योंकि जब भी सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस गिर जाता है ना, तो प्राइस का क्या हुआ, प्राइस गिर गया। अब प्राइस, प्रोडक्ट का दाम गिर गया, पी से P1 पर आ गया। ठीक। अच्छा, अब दूसरे डायग्राम पर आते हैं। ये मेरे पास डिमांड है और ये मेरे पास सप्लाई है, दोनों आपस में एक दूसरे को ई पॉइंट पर काट रहे हैं। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ठीक। अब की बार मैं डिमांड को ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, डिमांड बढ़ गया D1 और सप्लाई भी बढ़ गया S1। डिमांड बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, लेकिन कौन सा ज़्यादा बढ़ा, डिमांड ज़्यादा बढ़ा, तो इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है ना, सिंपल। डिमांड ज़्यादा होती है तो दाम बढ़ जाता है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो दाम का क्या होगा, बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ते ही प्राइस का क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट और थर्ड डायग्राम, ये मेरे पास डिमांड है, ये मेरे पास सप्लाई है, दोनों यहाँ पर आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो मेरा ये प्राइस है, ये मेरा क्वांटिटी है। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, डिमांड और सप्लाई दोनों को बराबर बराबर बढ़ा रहा हूँ, डिमांड भी बढ़ा रहा हूँ और सप्लाई भी बढ़ा रहा हूँ, दोनों को मैंने बराबर बराबर बढ़ा दिया। तो प्राइस का क्या होगा, प्राइस वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि जितना डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ा, उतना ही सप्लाई के बढ़ने से प्राइस गिर गया। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर बढ़े, तो प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहा। ठीक। तो अगर क्वेश्चन ये कहता है कि डिमांड बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, बताइए प्राइस क्या होगा, तो आप कहेंगे हमें नहीं पता कि प्राइस क्या होगा,
क्योंकि प्राइस के बारे में हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमको ये ना पता हो कि डिमांड बढ़ा ज़्यादा या सप्लाई बढ़ा ज़्यादा, हम तब तक नहीं बता सकते। लेकिन हम एक बात सर्टेनिटी से बता सकते हैं, वो ये कि जैसे ही डिमांड सप्लाई बढ़ेगा क्वांटिटी बढ़ेगी। तो यहाँ देखिए, पहले क्वांटिटी क्या थी, क्यू थी, अब क्वांटिटी बढ़ करके हो गई Q1। पहले क्वांटिटी क्या थी, क्यू थी, अब क्वांटिटी बढ़ करके हो गई Q1। पहले क्वांटिटी क्या थी, क्यू थी, अब क्वांटिटी बढ़ करके हो गई Q1। तीनों ही सिचुएशन में क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई है। तो क्वांटिटी विल इंक्रीज, प्राइस विल रिमेन अनसर्टेन। समझ गए बात को? तो आइए अब हम वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ चेंजेस वुड मोस्ट लाइकली टू डिक्रीज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्वांटिटी बढ़ी कब थी, जब डिमांड सप्लाई दोनों बढ़े। तो क्वांटिटी घटेगी कब, जब डिमांड सप्लाई दोनों घटेंगे। तो आंसर क्या होगा, व्हेन डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई डिक्रीजेस। डी इज द आंसर। ठीक है, थैंक यू। द वीडियो इज नाउ वी आर मूविंग अहेड। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। हैप्पी संडे। बाय बाय।